We had studied this in Principles of Management, Stability of Personnel. So staffing is where that principle applies. That is principles of stability of personnel. Stability of personnel matlab you must ensure the policies of your companies, whether it is your salary, whether it is the working atmosphere, or it is any other policy, that they don't go out for jobs. Just before you were joining the class, I was having a talk with my daughter. तो उसके एक मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. Actually, she was telling me, she gave me one offer to teach human resource in a college. So she said that person is very known to me, so they want you to teach there. So she was telling me that one of her classmate who was working with Reliance India at the topmost. He was with the this Reliance Apparels, left the job. So I said that Reliance को छोड़ दिया. So she said, Mama, बहुत ज़्यादा problems हैं. And after pandemic, they have, fixed the targets in such a manner that people are forced to leave. So I said, you are, Vineet, this boy is second. एक मेरी और स्टूडेंट थी जो मेरी खुद की स्टूडेंट थी, करीमा गुप्ता. So she also left Reliance. What does that show? What does that show? अगर कंपनीज की जो पॉलिसीज हैं, इफ दे आर नॉट फेवरिंग द people who are working there, that means the that means the company will not be having efficient productivity in the future. As you all know that my husband is in Dabur, so okay. So they have a policy that if a person is completing 10 years, if a person is completing 25 years in that, so they give a very good, incentive. And then they also give इतना बड़ा जो है reality में, मतलब इतनी बड़े चांदी का जो है, they give a bowl. So one of our friend is going to get this year, so he was saying चांदी का कटोरा. And मैंने उसको इतनी डांट लगाई. I said कि at least your company recognizes you. इतना बड़ा कटोरा है, if you sell it out, it is of 60,000, 70,000 rupees. And believe me, we all were talking. तो एक और थे, वो यही कह रहे थे, during the pandemic nobody was taken out of the job and everybody was given the complete freedom कि वो कभी भी आ सकता ऑफिस, कभी भी मतलब कि जा सकता है. उससे क्या हुआ? एम्प्लॉइज टर्नओवर, यानी कि जो नौकरी छोड़कर जाने वाले थे, दे वर लेस. Plus their company's policy otherwise is also very good for promotion and all other, they have a good policies. But we need certain basic strategies and policies in the company जिससे कि हम इंश्योर करें. तो एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसको कहते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शन में प्लानिंग किसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग किसको कहते हैं. तो अब हम पढ़ रहे हैं कि when you have organized your company, now you need good staff. And if the company has good staff, that means जो हमने प्लान किया है, जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, जो हमने गोल को अचीव करने के लिए गोल सेट किया है, that will be achieved efficiently and effectively, timely be, and with optimum utilization of resources. Now let us come to the concept. Staffing function of management is concerned with obtaining, utilizing, maintaining a satisfied and satisfactory workforce. Satisfactory means हमारे लिए काम करना, मतलब कि the people who are working, they should ensure efficiency. And satisfied मतलब उनकी तरफ से they should be contented. It is the process of filling, keeping filled
the positions in the organization structure. In an existing enterprise, staffing is a continuous process. क्यों? क्योंकि at some time the staff may leave. Sometimes they may be promoted to the next level. Sometimes they may retire, and sometimes unfortunate death. तो ऐसे कोई भी सर्कमस्टांसेस होती है तो एक पोजीशन खाली होती है, और आपकी कंपनी अगर एक्सपैंड होती है तो आपके जो जॉब पोजीशंस हैं वो आपके एड ऑन होते हैं. सो दिस वे इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. एंड एज आई सेड, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, अगर आप आज से 20 ईयर्स बैक यही बात को कहते ना, तो स्टाफिंग डिड नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस, बट नाउ इट हैज बिकम ग्रेटर इंपॉर्टेंस. पता है क्यों? क्योंकि आज की डेट पर कोई भी हो, अ पर्सन हु इज इवन इन अ कॉल सेंटर, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉल सेंटर्स में बच्चे जो है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड दे गो कि चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, वी आर डूइंग आवर ग्रैप्स बाय यूजिंग दिस एसओएल, तो हम थोड़ा वहां नौकरी कर लेते हैं. इवन देयर जहां पर लोग बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहते नहीं है, वहां पर भी you are trained. And एक ट्रेनिंग करने के लिए a company has to take all the steps, and then टेक्नोलॉजी आपकी अपग्रेड होती है. You have to develop them accordingly. And if a company is spending this much of amount in interviewing, in recruiting process, then in training, then in developing, और उसके बाद वो स्टाफ छोड़कर चला जाता, तो सोचो कि उस कंपनी का कितना नुकसान हो जाता है. It's a great loss. A very simple example is, if your teacher is leaving your job at this stretch, कितना नुकसान होता है. Because the student's moral will be सबसे पहले डाउन होगा. आने वाले टीचर को पहले बच्चों को समझना, करिकुलम को समझना, उसको कैसे इम्पार्ट करना समझना बहुत बड़ी चीज होती है. Even within the same branches also it is difficult, because a child is, you know, habitual of hearing to a particular teacher. अगे एक दूसरी टीचर आएगी तो उनके लिए that would be like something negative. तो that means जो टीचर ने छोड़ने के बाद स्कूल के लिए नुकसान हुआ. The leaving of the teacher would be a dent. वो तो that is something different somehow. Let us not talk about that, but एक general process में बता रही हूँ. And this I have I myself had gone through this position. When I joined, मतलब कि I was, as you know, I was taking class 7th and 8th in Yojana Viha branch, and my principal ma'am wanted that I should be shifted to the next level, because as I told you that I'd completed my masters and I was already BA. So she said कि आप वहाँ चले जाओ. So when I started here, तो it was September 7th. Teachers Day के next day मैं गई थी, मतलब 2 दिन बाद गई थी. Literally, I was not prepared to join Dilshad Garden branch. The reason was that there was एक बार मैंने बहुत सुना हुआ है कि बहुत politics है. Then secondly, I was so attached to my students. I never wanted to leave them. Yet school का teachers, मतलब कि principal ma'am is the boss, तो मैं चली गई. When I went there, तो 9th में तो मुझे इतनी प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि 8th और 9th के बच्चे तकरीबन सेम थे. 10th में भी प्रॉब्लम नहीं आई. When I entered 12th standard, तो I took the class. Definitely 12th standard का जो Noni please. थोड़ा सा डिफरेंट था. एंड देन द स्टूडेंट्स हैड दिस कि मैम तो 8th को पढ़ाती थी, हमें कैसे पढ़ाएंगी. I taught one poem. I think it was My Mother at 66. नहीं,
this कौन सा था chapter? There was one chapter I taught them, and they went to the principal ma'am. They said, we don't want this teacher. First day. So principal ma'am ने कहा कि why? She has got a track proven record and she's really very good. आपको क्या problem है? तो कहते मैम ये 8 को पढ़ाती थी इसलिए हमें नहीं चाहिए. तो they said, how do you assess a teacher कि वो 8 को पढ़ाती इसलिए आपको नहीं पढ़ा सकते? आपको क्या problem है? तो they said हमें कोई problem नहीं है. बट जो पहले टीचर पढ़ाती थी ना हमें उनकी आदत हो गई. दिस वॉज देयर आंसर लिटरली. एंड दैट वॉज अ टाइम उसके एकदम नेक्स्ट 10 days में वी वर हैविंग अ प्री बुक्स. एंड विद इन 10 days वी वर हैविंग अ प्री बुक्स. तो दे सेड कि हमें तो वो टीचर वापस चाहिए. तो प्रिंसिपल मैम को बहुत गुस्सा आया. गुस्सा इसलिए आया था कि दैट टीचर हैड लेफ्ट द जॉब विदाउट इन्फॉर्मिंग. तो मैम ने कहा कि वो बिना बताए अगस्त 20 को गई थी. एंड now it is already September end, and now she has told that September, and she has told that now she is not going to join. तो हम क्या करें जाकर बताओ. पढ़ना पढ़ो मत नहीं पढ़ना मत पढ़ो. She told this one because she was really very supportive to me. The students were not. Then I said, ma'am, give me 1 week time. अगर ये 1 week में मेरे से नहीं होंगे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी. She said ठीक है. The students were there. I was also there inside the principal's room. Then I asked, बेटा आपको प्रॉब्लम क्या आई बताओ. Am I too, मैं बहुत कम उसमें पढ़ाई. They said no मैम हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर मैम वो तो हम लोगों को आदत थी ना उस टीचर की. तो मैम थोड़ा सा हम लोग को हो रहा था. फिर मैम दूसरा आप ऋचा राघवन की मम्मी हो. तो मैंने कहा तो ऋचा राघवन मतलब मेरी बड़ी डॉटर उनकी क्लासमेट थी. तो मैम हमें थोड़ा सा और लगा. ठीक है मैंने कहा टेक मी एज अ टीचर. मैं रिया राघवन की क्लास टीचर भी हूँ. माई ओन डॉटर. तो मैंने कहा प्लीज टेक मी एज अ टीचर, डोंट टेक मी एज अ. तो दे सेड ओके. देयर वाज 1 week गिवन. 1 week मैंने खुद मांगा था. But after 1 week, I did not say anything to anyone. That students themselves went to the teacher and they said to principal ma'am, they said, ma'am, we are sorry. Ma'am बहुत अच्छा करवा रही हैं and we are really satisfied. But मैंने एक चीज को उसमें महसूस किया था कि जो बच्चे होते हैं, they really had to face the trauma to accept me. I'm not saying that I was a good teacher, not at all. लेकिन एक नए टीचर को चाहे उसका लेवल क्या भी था वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. तो एक कंपनी के अंदर दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम. अगर एक मतलब कि एक टीचर जिसको ट्रेन किया गया, क्योंकि फॉर 11th and 12th वी हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग. आई ऑल्सो रिसीव दिस ट्रेनिंग आफ्टर द boards. We receive the training. We have certain materials which are provided by CBSE. मतलब हम लोगों को रीडिंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सप्लीमेंट्री बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं. सो आई कुड दैट वाज द मेन प्रॉब्लम. और एक ऑफिस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में जहां दे स्पेंड crores of rupees in the recruitment process, in the training process, and then if the staff is moving out, it is really a dent to the company. Now first is why do we need staffing? Because अगर आपके पास एक प्रोसीजर नहीं रहेगा ना तो you will be getting anyone as a staff. आपके पास कोई भी आ जाएगा. Staffing में you are following certain procedures to obtain your staff. You are having some parameters कि इस पोजीशन के लिए कौन सी कंपनी, मतलब कि कितने हमें क्वालिफिकेशंस चाहिए, what should be the experience likewise करके. So that would help you to obtain the competent personnel for various jobs. Definitely, if the personnel is
competent, qualified, experienced or skilled, he or she would put higher performance. Then it would ultimately help in the survival and growth. कोई भी कंपनी जो स्टार्टअप होती है, which starts with 2 or 3 people and it grows to say एक ग्राफ उसका उठता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं उनका स्टाफ होता है, उनकी स्टाफिंग होती है, which would have helped them. Take any startup, take Flipkart. It is not only the people who have invested, it is also those people who have invested their work, their energy, their talent. It ensures optimum utilization of human resources. क्योंकि if your staffing process, procedure, policy, ये तीनों बिल्कुल ठीक हो, तो एब्सेंटीज नहीं होंगे. एब्सेंटीज मतलब छोड़कर जाने वाले. You can get the best results out of your competent staff. And if the policies, the procedures are employee friendly, कंपनी अच्छी. अच्छा, आपको क्या चाहिए? Why are you studying MBBS, sorry MBA? Why are you all, आप लोग क्यों सोच रहे हो कि हम लोगों को बीकॉम करना, बीबीए करना? डेफिनेटली आप में से हर एक बच्चा यही तो सोच रहा होगा कि आई शुड गेट अ जॉब जहां मेरी सैलरी अच्छी है, जहां जब मैं जाऊं तो मुझे आई एम गेटिंग द डिग्निटी, आई एम रिकॉग्नाइज फॉर माई वर्क. तो अगर कंपनी की पॉलिसी होगी तो आप होंगे. सो दिस इज अ टू वे ट्रैफिक. दिस इज इंपॉर्टेंस को एक बार याद रख लेना. इसमें से मैक्सिमम आपके आता है हायर परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वाला, मतलब जो कोट करने को आता है. नाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टाफिंग प्रोसेस? उस दिन मैंने आपको बताया था देयर आर 2 एस्पेक्ट्स. एक होता है स्टाफिंग, दूसरा होता है HR. स्टाफिंग मींस जो हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, यानी कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है ये हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरीके का स्टाफ चाहिए होगा. इफ यू आर हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होगी. इफ यू आर हैविंग द सर्विसेज, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होगी. एक ही कंपनी के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग तरीके का स्टाफ चाहिए, प्रोडक्शन के लिए अलग स्टाफ चाहिए. सो दैट इज ऑल द प्रोसीजर. उसको हम कैसे लाएंगे, उसकी क्या सैलरी ब्रैकेट रहेगी, उसको हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं, उनमें वो जो सारी चीजें ऐड होती है वो सब कुछ स्टाफ के अंदर आता है. Whereas HR is a complete department जिसके अंदर हम सबसे पहले राइट फ्रॉम हमारे सीईओ से लेकर जो बॉटम लाइन तक हमारी हिरार्ची है वो पूरा हम सेट करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स हमारे यहाँ कौन रहेगा, उसके अंदर हम उस डिपार्टमेंट को कैसे संभालेंगे. That will require certain legal procedures also, that would require certain acts also, जैसे वेज एक्ट को आपको फॉलो करना है, कंपनी एक्ट को फॉलो करना है, सैलरी एक्ट को फॉलो करना, तो वो सारी चीजों को आप उसके अंदर जो हो एड ऑन करते हो. स्टाफिंग में हम सिर्फ उतना ही करते हैं, जो स्टाफ आ रहे हैं उनको आने के लिए, उनको आपकी कंपनी में सस्टेन करने के लिए, एंड व्हेन दे गो आउट तो उससे जो रिलेटेड प्रोसीजर है वो करना. Whereas HR is related to everything, your आपका जो बाहर के दुनिया के साथ, what will be the wage act, how you are going to ensure, अगर मतलब कि कंपनी जो मतलब कि गवर्नमेंट इज चेंजिंग सम ऑफ द एक्ट्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू एंश्योर इट इन योर, ये सब कुछ आपका HR के अंदर है. तो HR is a broader term and staffing is a short term inside it. तो स्टाफिंग के अंदर वी हैव द प्रोसेस, ये आप अच्छे से लर्न करोगे. And this will also go in a what we call as flow. 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 ही जाएगा. 1 3 5 2 7 ऐसे नहीं जाएगा. This is a process, and all the process
एचआर बड़ा होता है बेटा, एचआर इज अ ब्रॉडर टर्म, एचआर के अंदर स्टाफिंग आता है, स्टाफिंग के अंदर नहीं. नाउ व्हाट हैपेंस इज, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपकी कंपनी कैसी है. दैट डिपेंड्स. इफ योर कंपनी इज ओल्ड, then what will happen? If your company is old, then you may be having already the workforces. You may be having the workforce. आपके पास ऑलरेडी काम करने वाले होंगे. लेकिन अगर आपकी कंपनी न्यू है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो हमने व्हाट वी कॉल एज ऑर्गेनाइजिंग में किया था, ऑर्गेनाइजिंग में किया था कि हमने डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिए थे काम को इनटू स्मॉल यूनिट्स. डिविजन ऑफ वर्क, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, division of work, then departmentalization. So now we will see ki what is the workload analysis, यानी कि आपके कंपनी में किस तरीके का काम होगा. व्हाट वुड बी द वर्कलोड, मतलब कि द असेसमेंट कि आपको किस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, क्या किस तरीके का काम है. लाइक एज आई सेड, प्रोडक्शन, सेल्स, अकाउंट्स. देन अगर एज आई सेड इफ यू आर हैविंग एन ओल्ड कंपनी तो यू विल ऑल्सो हैव वर्कफोर्स. तो आपके पास कितने हैं एंड हाउ मच डू यू रिक्वायर. अगर एग्जिस्टिंग है तो आपको कितना और चाहिए, एंड न्यू है तो आपको किस तरीके का एम्प्लॉय और कितना चाहिए. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, लेट मी टेल यू कि we recruit more than what we require. We recruit more than what we require, and that is where we are lacking. ना ही आपका वर्कफोर्स ज्यादा होना चाहिए और ना ही आपका वर्कफोर्स कम होना चाहिए. अगर कम होगा तो भी आपकी एफिशिएंसी खत्म, और ज्यादा होगा तो यू आर गोइंग टू पे मोर. दैट इज वेस्टेज ऑफ द पीपल. नेक्स्ट इज, अब आपने एनालाइज कर लिया है व्हाट इज योर मैन पावर रिक्वायरमेंट, राइट. I have opened the NCERT for you now. As you ask me, क्या नाम है, संभव. The second one is you have to recruit. ये मैंने आपको समझाया. A situation of overstaffing somewhere would necessitate employees removal, or a situation of understaffing would necessitate the starting of the recruitment process. दोनों में जो है, in both the terms, it is wrong for the company. अगर आपके पास ज्यादा है तो भी, because you are paying more than what you need to pay, and the staff is going to be waste. and आपके पास कम है तो भी it is not, क्योंकि आपका जो, you will not be able to utilize them. That means you have to translate the manpower requirement. What should be the job description? What should be the desired qualifications, experience, characteristics? आपको जो जो चाहिए वो सब कुछ आप उसके अंदर डालोगे. The second is recruitment. This is one of the long topic. Now, what is recruitment? Recruitment, please, जितने भी definitions हैं, kindly learn it. Recruitment का definition आता है. Recruitment is a process of searching your prospective employees. यानी कि उस दिन मैंने आपको बताया था that when you are asking them, जो हम इंग्लिश में एप्लीकेशन कम बायोडाटा करेंगे ना, वो यहाँ काम आता है.
द एप्लीकेशन कम बायोडाटा जो हम करते हैं वो यहाँ काम आएगा. दैट इज यू विल बी आस्किंग, यू विल बी पुटिंग एन एडवर्टाइजमेंट. दैट एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी डिफरेंट. आप अपनी फैक्ट्री के बाहर लिख सकते हो रिक्वायर्ड सेल्स बॉय, रिक्वायर्ड वर्कर्स. देन यू कैन पुट इट इन द न्यूज़पेपर, you can put it in the magazines, you can put it on the web portal, you can go for the campus placement. But you are asking the prospective employees to apply for that job, right? ये देखिए लिखा हुआ है, the information generated in the process of writing the job description and candidate profile may be used for situation vacant. जो हम एडवर्टाइजमेंट एज वेल एज हम जो एप्लीकेशन का बायोडाटा भी करने वाले हैं इंग्लिश में, वो यहाँ आता है. द एडवर्टाइजमेंट्स में बी डिस्प्लेड ऑन द फैक्ट्री गेट, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड वो डिपेंड करता है आपको कैसा स्टाफ चाहिए. भाई अगर आपको सिंपल वर्कर्स चाहिए, आप अपनी कंपनी के उसका गेट के बाहर कैजुअल कॉलर्स के लिए डाल सकते हो. लेकिन अगर आपको सीईओ चाहिए तो आप उसके बाहर नहीं लिख सकते हो कि वांटेड सीईओ फॉर द कंपनी. So you need to go through the proper procedure. And we will be talking about this in the next. The essential objective is to create a pool of the prospective employees occupying the position, job candidates, both internal and external. This that day I told you. Internal matlab if your company is old, तो आपके पास जॉब ट्रांसफर, प्रमोशन ये हो सकता है. लेकिन अगर आपकी कंपनी नई है या फिर आप ऐसा जॉब चाहते हो जिसमें आपको नए कैंडिडेट्स चाहिए, तो यू गो फॉर द एक्सटर्नल सोर्सेस. दिस इज अ सेपरेट टॉपिक. डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल टॉपिक भी आता है, तो यू कैन गो फॉर. द थर्ड इज द नेगेटिव प्रोसेस. मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, सिलेक्शन इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज रिक्रूटमेंट में आपने जो है आपके पास एप्लीकेशंस आए थे. एप्लीकेशंस में हर तरीके के एप्लीकेशंस आते हैं. आपने जो है यू हैव आस्क्ड फॉर, आपने एडवर्टाइजमेंट दिया कि आई वांट कंप्यूटर ऑपरेटर, और आपके पास जो है कोई रिसेप्शनिस्ट भी डाल देंगे कि चलो यार देख लेते हैं. इट ऑलवेज हैपेंस. It always happens. So this means in the selection आप सबसे पहले तो you will be doing two things. क्या क्या करोगे आप? पहली चीज तो आप करोगे that you will eliminate unnecessary candidates. फिर आपका जो मिक्सचर होना था, मतलब आपने जो क्वालिफिकेशन बोला उससे मैच करता हुआ होगा, नहीं होगा तो उसको आप एलिमिनेट कर दोगे. And you will go for the second process, that is selection. You will be going for that. यानी कि आपको जो है select करना है. It will ensure, select करोगे, you will be getting the best employee. It enhances the self-esteem and prestige of those selected. But इसमें आपका interview, test, मतलब there are number of tests in selection, जिसमें हम selection test बोलते हैं. We'll be having that. Then you will offer them the letter of appointment. आपने उनको अपॉइंट नहीं किया है, you have just offered them the employment contract. What is that employment contract? That is only द कॉन्ट्रैक्ट की ये आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आपकी सैलरी रहेगी, ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा. इफ द कैंडिडेट इज एक्सेप्टिंग इट, देन ही विल साइन एंड ज्वाइन. वंस ही ज्वाइंस, देन he gets a proper appointment letter. Next is placement and orientation. यानी कि अब वो ज्वाइन हो गया है, अब उसको प्रेजेंटेशन दिया जाएगा. In some of the companies they have a proper orientation. 3 दिन का प्रोग्राम चलता है प्रॉपरली, जिसके अंदर दे गिव ऑल द 2-3 दिन
कि कंपनी क्या चाहती है, what are their superiors, who are their subordinates, what kind of job they would be doing, what would be their target, what if they have some problems, सब कुछ familiarize किया जाता है. Everything is familiarized, and that is called as orientation. In some companies, the orientation may not be like this. That may be like an internship. आपको एक हफ्ते के लिए किसी के नीचे काम करना है, मतलब जो पुराना इंसान है वो आपको समझा रहा है, या आपका जो सुपीरियर है वो आपको समझा रहा है. सो इट कैन ऑल्सो बी देयर. देन व्हेन अ कंपनी इज कम हैज ऑलरेडी टेकन यू, हर एक इंसान जो है he or she will be trained to that level जहां उसने एंटर किया है. अब when you enter into the job you will need some training. अभी सीबीएसई में वी आर ऑल्सो हैविंग द ट्रेनिंग्स, मतलब कुछ कुछ ट्रेनिंग्स हैं जिसमें मैंने भी अप्लाई किया है थ्रू दीक्षा प्लेटफॉर्म. दे आर ट्रेनिंग द टीचर्स. तो साथ साथ में दे मे टेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको बोले आप वहां जाकर ट्रेनिंग ले लो. लाइक इन सम ऑफ द कंपनीज व्हेन दे आर चेंजिंग दी दिस डेटाबेस, अपना प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं, तो वो अपने आईटी एम्प्लॉयज को जो है दे रोप अप विद द अदर कंपनीज और वहां पर जाकर ट्रेनिंग देते. सैप की ट्रेनिंग होती है, एसक्यूएल की ट्रेनिंग होती है, अभी जो पाइथन आया था तो उसकी ट्रेनिंग होती है. तो द पीपल आर सेंड देयर सो दैट दे आर एबल टू लर्न दोज थिंग्स. एंड डेवलपमेंट आपका मैनेजरियल लेवल में होता है. ट्रेनिंग इज फॉर द वर्क यू आर डूइंग. ट्रेनिंग इज फॉर द वर्क यू आर डूइंग, बट डेवलपमेंट होता है उनका करियर अचीवमेंट. दैट इज मोर ऑन टू योर सेटिस्फैक्शन. एंड ट्रेनिंग होती है आपका जॉब कॉम्पिटेंसी. Like as I said कि when we I was in the school also, we were sent to the training. अलग अलग ट्रेनिंग के लिए दिया जाता था. एंड डेवलपमेंट होता है हमारे लिए कि इफ यू आर डूइंग दिस देन यू विल बी गेटिंग दिस, मतलब आप इस नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हो. देयर आर सर्टेन डेवलपमेंटल करियर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आल्सो, एंड एवरी कंपनी हैज डिफरेंट. अब यहाँ पर as you asked, as discussed earlier, in most of the companies there is a human resource development department which takes care of staffing per. Let us come to this area. Staffing is a part of human resource management because staffing is done in all the companies. HR जो होता है, that is a staffing is closely linked to organizing, whereas आपका जो HR होता है, this is only a component. The staffing function deals with human elements of management. Managing the human component is very important. So इसीलिए HR is a department which specializes for each of this department, जिसके अंदर हर छोटी छोटी चीजें दी हुई है. The management of human resource is a specialized area which require expertise of many people. The number of human resource specialists and size of its department gives an indication कि business कितना बड़ा है. And then कैसे आपको अपनी कंपनी के अंदर रिक्रूट करना है. Then what? These are the duties they do. अब मैंने आपको बताया कि in HR we have recruitment, we have analyzing the job, then developing compensation and incentive plans. स्टाफिंग में हम सिर्फ उनको दे रहे हैं, बट एचआर जो है उसका काम होता है, उसे देखना होता है कि व्हाट इज द मार्केट सर्वे. दे हैव टू मेंटेन द लेबर रिलेशन, दे हैव टू मेंटेन द ग्रीवेंसेस, दे हैव टू हैंडल द कंप्लेन, दे हैव टू सी द सोशल सिक्योरिटी, दे हैव टू डिफेंड द कंपनी इन लॉ. लीगल जो आपका एप्लीकेशन है उनको उसे देखना होता है. सो दैट इज व्हाई एचआर का जो काम होता है वो बड़ा होता है. एंड स्टाफिंग इज वन function that they perform, जिसके अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो गिवन.
नाउ अब आपका ट्रेनिंग तो चलता ही रहेगा, ट्रेनिंग आपकी चलती रहेगी, ट्रेनिंग डजंट स्टॉप। से यू हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल, वहां पे आपको ट्रेनिंग चाहिए होगा, यू मे बी रिक्वायर्ड टू लर्न सम न्यू स्किल्स, so when you are learning a new skill it is training, but when you are given some career development programs that would come under the development, normally हम development managerial level में लेते हैं, training is done for everyone, even for a worker the training is there, when a new machine comes उनको train किया जाता है कि उस पर कैसे काम करना है। Now the next is they have to see the performance appraisal, जब आपकी कंपनी में लोग आ गए तो आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब क्या हो गया, उनका करंट वैल्यू क्या है, देन आर दे फिक्सिंग अप इन द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, मतलब अगर आप आज से 5 साल बाद उस इंसान को मैनेजर लेवल पे लेकर आना चाहते हो है तो व्हाट शुड बी द सैलरी वी नीड टू गिव। एंड इसके साथ में क्या होता है, इफ अ पर्सन इज वर्किंग इन अ कंपनी आफ्टर एवरी, दिस डिपेंड्स, आजकल कंपनीज में ट्रिमेस्टर भी है, मतलब 3 महीने 6 महीने ऐसा होता है, पहले 1 ईयर होता था, जो उनका बॉस होता है ही वुड बी अप्रेजिंग द पर्सन ऑन अ पॉइंट ऑफ 5 या 10, किसी कंपनी में 5 में से मार्क्स दिए जाते हैं, किसी किसी में 10 में से दिए जाते हैं, उसने टारगेट पूरा किया, टारगेट को टाइम से पूरा किया, पैसा ज्यादा लगाया, उसकी वजह से कंपनी को कितना फायदा हुआ, and that boss has to appraise him on that scale, and if there is a positive feedback तो उसके अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट वाला प्रमोशन, करियर प्लानिंग, दिस इज डिजाइन, क्योंकि इफ अ पर्सन इज डूइंग वेरी वेल तो उसको जो है इंसेंटिव्स मिलते हैं, उसको सैलरी में हाइक मिलता है, उसको प्रमोशन मिलता है, मे बी प्रमोशन जो है दे आर इंटीग्रल पार्ट, मीन्स इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, job satisfaction, job enrichment. Then in this process you also have to establish the plans of your wage and salary, और ये मैंने आपको बताया कि आपको हर चीज में, लाइक इफ यू आर पुटिंग इट इनटू द वर्कर्स, अभी हम लोग अभी 2 दिन पहले देयर वाज अ वर्कशॉप, तो इट वाज सेड दैट कि नाउ इवन द कॉल सेंटर्स जो हैं they also have to pay the minimum wage, that is something around 14,000 वो आता है, so that has to be devised by the companies कि वो क्या पे प्लान रखने वाले हैं, then after how many slab उनको जो है they will get the next level में जाने के लिए what are the job, वो उनको देखना पड़ेगा, then compensation also it is also referred to the wages, salary के साथ incentives मतलब most of the companies are now target based, so if the company, if the team, if the person, he or she is achieving the target within the given time, they get incentives. In some companies it is they get the incentive according to the company's overall turnover, then बोनस आपका 8/1/3 होता है, बोनस आपका 8/1/3 होता है, ये हमेशा याद रखना, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन फॉर द मार्केटिंग they get the commissions also, in the how do they get the commission is they may be given some, it may be kind or cash, पैसा भी मिल सकता है, sometimes it is any trip abroad, ऐसे इनको मिलते हैं, देन इनडायरेक्ट पेमेंट्स, कंपनी कभी वेकेशन देती है, इंश्योरेंस देती है, एलटीसी देती है, आपको जो बेनिफिट्स देती है, ये सारा कुछ डिराइव करना जो है इट इज ऑल, एज आई सेड डायरेक्ट इज टाइम बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड, दैट इज सैलरी, वेजेस, मतलब जो हमें महीने दिन में
कंपनीज में जो डेली वेजेस होते हैं उनको डेली देना पड़ता है. एंड परफॉर्मेंस बेस्ड मींस अकॉर्डिंग टू द वर्क, जो कि हमने पढ़ा था, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम टेलर का, वैसे. Then there might be combination pay plus incentive. That depends कि आप किस तरीके का पॉलिसी अप्लाई मतलब की कर रहे हो. तो दिस मीन्स स्टाफिंग एज अ प्रोसेस इंक्लूड्स एक्विजिशन. एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, स्टाफ को लेकर आना, रिटेंशन उन्हें रिटेन करना, मतलब ये ऐसा ना हो कि ऐसी पॉलिसी की कंपनी छोड़ के भाग गए, उन्हें डेवलप करना, उनको परफॉर्मेंस के लिए मतलब कि उनकी तारीफ करना, उसके अकॉर्डिंग उनको कॉम्पनसेट करना. दिस इज ऑल टू बी, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक सप्लाई एंड मतलब हमारे इंडिया के अंदर तो लेबर ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा है, लीगल इतना ज्यादा नहीं है. दैट इज व्हाई द पे इन our country comparatively is less if we compare to any other developed countries. This is because of the current market trend. We don't have dearth of staff. आज एक गया, चार आ गए. हमारे लिए तो there is one, single say that you are replaceable. In fact, आपको छोड़कर आपसे कम में भी आने के लिए तैयार हो जाते. But it is not the same in some other countries. They have, that is why it is said, इंडिया में अगर हम 10,000 कमाते हैं तो मतलब कि इसी what you call as skills के साथ you can earn 50,000 in that country. That is because of this factor. जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, डिमांड एंड सप्लाई वाली जो थ्योरी है वो यहाँ अप्लाई होती है. बट येट if the company has made certain policies in that way, then it hardly matters. The person may be working in your company for the entire lifetime till he retires. And there have been people who have been very faithful to their companies. In the next class we'll be moving towards the next one. Each and every concept inside this has different questions. So kindly read it, and you can in the meanwhile you can